देखिए हम बिजनेस करते हैं, संतोष जी नासिक से कर रहे हैं, आप कोटा से कर रहे हैं, मैं मुंबई से कर रहा हूँ, कोई बाहर गुजरात से कर रहे हैं, कोई कर... लेकिन जो बिजनेस शुरू करने के बाद, बिजनेस शुरू करते समय, बिजनेस करने के बाद जो दिक्कतें आती है, जो कठिनाई आती है और जो फायदे नफा होता है, ये वो दिखाने का जरिया होता है वो नॉमिनेशन फॉर्म में। जब एंटरप्रेन्योर फॉर्म भरने बैठता है तो उसे लगता है कि मैंने क्या किया है और मैंने क्या नहीं किया है नहीं किया है। और मुझे क्या करना चाहिए। उस नॉमिनेशन के बाद उसके दिमाग में आ जाना शुरू होता है व्हाट आई अचीव्ड एंड व्हाट आई नॉट अचीव्ड। एक है। दूसरा, जब वो फॉर्म भरता है, जब वो कम्युनिकेशन बिल्ड करता है, तो उसमें उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसके मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी फाइनेंशियल सिस्टम, उसके बिजनेस सिस्टम, हाउ दे कैन प्लान देयर बिजनेस, हाउ दे वांट टू डेवलप देयर प्रोसेसिंग सिस्टम, हाउ दे विल मैनेज द पीपल। पीपल मीन्स उनके एम्प्लॉयमेंट को किस तरह मैनेज किया जाए, उनके लिए कैसे वेलफेयर किया जाए, हाउ दे विल आइडेंटिफाई न्यू इमर्जिंग मार्केट, कैसे एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े, कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी ली जाए, कैसे गवर्नमेंट के जो अलग अलग टैक्सेस है, कैसे उसको टैक्सेस को कंप्लायंस किया जाए, परफॉर्म किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं उपलब्ध की कर दी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो, फाइनेंस हो या स्टेट गवर्नमेंट, ये सुविधा लेने का भी दिमाग उसको चलना चाहिए, उसको आइडिया होनी चाहिए, उसका एफर्ट्स होना चाहिए। नहीं तो सुविधा किस काम की। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर आज के जो अवार्ड विनर है, इस व्यापार जगत के माध्यम से भारत के हर व्यापार जगत में आने के चांसेस है। हम उनको बधाई देते हैं। धन्यवाद चंद्रकांत जी। आई थिंक आपने बहुत खूबी कहा है कि ये अवार्ड ही नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एन अवार्ड, इट्स नॉट जस्ट एन रिकग्निशन। आई थिंक इट्स अ look back to what they have been able to achieve so far, what they have missed, and I think what they should look forward to in the next forward years coming. So I think that's a great way to self-assess, self-analyze, and understand what better can be done. How can you set up processes where you might lack, and how can you enhance your business growth, not only from a local perspective but from a global perspective also. I think one of the observations that I had, when I was actually going through this evaluation, and as Santoshi said, I think it was a humongous task to, sift through lot of, those applications coming in, and it's like a 19-20 का भी फर्क नहीं है यहाँ पे तो, So that was the challenge that we as juries faced. And I think one of the beauty about this awards was it was also encouraging a lot of women entrepreneurs. I think that is the best thing that we saw as well. Also, the second aspect was not on social enterprise. I think that is one of the biggest aspect of how are you also adding value to the society and adding value to the community at large. So I think ये एक बहुत अच्छा platform. This is a great platform. And if you see all those awards that happen, right, there will be always winners and there will be always people who are not able to qualify. I think what matters is that whether you qualify or not, you're already a winner because you've already taken that one step ahead in applying yourself and evaluating yourself first. I think self-evaluation, self-assessment itself is a great award because that is what your learnings come from, right? And from there onward, you try your journey to the next level, saying that, okay, today I have achieved, let's say, 100 crore of revenue, or let's say 10 crore of revenue. Now I want to make sure that I want to cross that threshold and look at maybe 2x, 5x, 10x. So I think it's a great way to self-evaluate yourself. And one more aspect that we saw is it is not about running the rat race. It is about, how do you make sure that you also are applying for the right category. तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कौन से कैटेगरी में हम फिट कर रहे हैं. सो वो भी एक तरह से ही एक चैलेंज है हर एंटरप्रेन्योर के लिए, हर अवॉर्डी के लिए. संजय जी, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, मेरा ये कहना है कि प्रतियोगिता जीतना एक ही व्यक्ति के लिए संभव होता है कि वो प्रथम आ सके, लेकिन प्रतियोगिता के लिए एलिजिबल होना अपने आप में
उस खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग नहीं जीत पाए वो इस स्तर तक तो आए, उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी बनाई कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और नेक टू नेक हुआ। एक प्रेरणा मिलनी चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को, जो व्यक्ति नया और एमएसएमई में जो भी काम करते हैं, जो लोग यंग हैं, नए हैं, वो लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए उसका विजेता होना या विजेता की दौड़ में शामिल होना अपने आप में उनके लिए एक प्रेरणा का विषय है। और अगले साल वो अपनी नई एनर्जी के साथ काम करेंगे, ऐसा उनके साथ सोचा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। जो भी व्यक्ति, ये पुरुष का समाज नहीं है, आधी आबादी है महिला हमारी। और मैंने ये देखा है मेरे विद्यार्थियों के दरमियान, मेरे स्टूडेंट्स में, मेरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आज के वक्त में मेरा ये देखने में आ रहा है कि जो लड़कियां हैं वो अपने किसी भी काम के प्रति ज्यादा संकल्प बनाती हैं और उस संघर्ष को लड़ने के लिए, अपने आप की जगह बनाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। एक उनका संघर्ष फोकस्ड है। नए स्टूडेंट्स के साथ मैं कहूँ, ये जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, जो एज ए स्टूडेंट आगे एंटरप्रेन्योर के रूप करते हैं, मैं संतोष जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा इस तरह। क्या है कि उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, जो यंग जनरेशन लड़का जो काम शुरू करता है उसमें कहीं ना कहीं फोकस पूरा नहीं होता है, वो किसी भी एक जगह पर डटता नहीं। लड़कियां ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आज ओयो के मालिक अग्रवाल या बहुत यंग लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और व्यापार जगत ने जो ये मंच बनाया और इस तरह का फॉर्म बनाया, जिसको बनाते वक्त कोई फर्जी आदमी उसमें कुछ भर ही नहीं सकता। मतलब किसी भी आदमी को आप ऐसे को अवार्ड नहीं दे सकते, अवार्ड लेके नहीं जा सकता कि वो कुछ भी कर लेगा। उसको लिखते वक्त इतने क्रॉस क्वेश्चन है, और ये वास्तव में एक अच्छा तरीका है। और ना हो क्या रहा है कि कई बार अवार्ड्स के मामले में ऐसा हो रहा है कि वो दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका मेरा पर्सनल अनुभव उसको पढ़ने के बाद में भावेश जी ये निकला कि ये बहुत अच्छी बात है। भावेश जी, संजय जी ने जो भी बात बताई है असफल चीज के लिए, एक्चुअल में अगर आप देखे जाए तो ये एक नया आयाम बन सकता है कि जैसे सफल लोगों को हम लोग अवार्ड देते हैं या उनको रिकॉग्निशन करते हैं, हमको इस चीज को भी देखना चाहिए कि जो असफल हुए लेकिन वो असफलता से फिर दोबारा सफल हुए, इन लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उनके लिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मतलब मैं 2 मिनट और ज्यादा लेना चाहता हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ वो है मारवाड़ी समाज। तो उस समाज में इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया जाता है कि अगर आप पहली बार फेल हुए हैं, वही कहने वाला था आपको, कोई बात नहीं, संतोष जी की मारवाड़ी स्टाइल में आप समझा दीजिए तो समझ जाएंगे लोग। मैं भी रेगिस्तान का रहने वाला हूँ, शेखावाटी का आदमी हूँ। तो पहली बार अगर फेल होते हैं तो हम लोग बोलते कोई बात नहीं, 80% लोग जो है वो पहली बार फेल होते हैं। 2 बार जब फेल होते हैं तो हम बोलते 60% लोग 2 बार फेल होते हैं, और तीसरी बार फेल होने के बाद हम बोलते हैं कि भाई 60% लोग फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, और 50% का मार्क पासिंग होता है। तो अभी तो 60% फेल होने का एक्सपीरियंस आपको आ गया है, तो अब इसके आगे आप फेल होने का कोई चांस नहीं, तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग लोगों को समझाएंगे और इस तरह से अगर लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो असफल होके फिर सफल हुए हैं, उन लोगों का अगर हम कहीं ऐसा एक प्लेटफॉर्म लाया जाए और उनका जो एक्सपीरियंस है वो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर किया जाए, so that these people they cannot get any difficulty to address that kind of failures. So I think it will give an encourage to the MSME and the entrepreneurs, even though if they find any difficulty, so these people what they will share the experience with them, that will be a beneficiary all this MSME. This is a good suggestion given by संतोष जी। आपको पता है कि धीरूभाई अंबानी कितने फेल हुए थे? धीरूभाई अंबानी जब ताज में बैठते थे, लोगों से बात करते थे, उस वक्त
10-10 बार 20-20 बार एक ही सप्लायर से, एक ही बायर से मिलते थे। ये कम से कम एक बार तो कहेगा कि ये मुझे माल बेचो करके, एक बार तो कहेगा कि मैं आपको माल क्रेडिट पे दूंगा। देखिए ऐसा है कि आज की डेट में हम कोई धीरूभाई अंबानी या कोई दूसरे जो बिरला वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन एक सक्सेसफुल एसएमई एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आज अगर आप कोटा से हो या नासिक मुंबई से या कहीं से भी हम लोग काम करते हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देकर, प्रैक्टिकल सपोर्ट देके उनको इस डिफिकल्ट टाइम में सरवाइव होने के लिए सपोर्ट दें।